بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے خاص دن آج ہم آپ کو میپ کے ذریعے سے یعنی نقشے کے ذریعے سے یہ سمجھائیں گے کہ ایام حج 5 دن یا 6 دن آپ کو کس طریقے سے گزارنے ہیں اور کیسے عمل کرنا ہے۔ اگر تھوڑا سا دھیان دیں گے اور تھوڑی سی توجہ دیں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اور عمل کرنا آسان رہے گا۔ آج ہے 8 تاریخ کی رات مکے میں ہوں۔ یہاں آپ کو مکہ مکرمہ میں آج 8 تاریخ کی رات میں، کیونکہ معلم کی طرف سے اعلان آیا ہوگا کہ رات میں ہی احرام باندھیں اور احرام باندھ کر تیار رہیں، رات میں آپ کو مینا پہنچا دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کل صبح پہنچایا جائے، لیکن اگر رات میں پہنچایا جائے تو اس کے لیے ضد نہ کریں اور بحث نہ کریں، یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے۔ تو آپ عشاء کی نماز کے بعد کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر احرام کی نیت سے غسل کریں اور وضو کریں احرام کی نیت سے، پھر احرام کی چادر باندھیں۔ اپنے کمرے سے، اپنے ہوٹل سے یا محلے کی مسجد سے یا مسجد حرام سے، مسجد حرام میں تو آنا آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا، تو یا تو اپنے کمرے سے، اپنے ہوٹل سے یا مسجد حرام سے یا محلے کی مسجد سے آپ کو حج کا احرام باندھنا ہے۔ حج کی نیت سے احرام باندھیں گے اور یا تو رات میں یا پھر صبح کو۔ آج آپ کو مکہ سے مینا آنا ہے۔ 8 تاریخ کا دن، 8 تاریخ کی رات ہے مکہ میں۔ آپ آئیں گے مکہ سے صبح مینا میں آپ کو آج 5 نماز پڑھنی ہے۔ 5 نماز اس طرح: ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور آنے والے دن کی فجر۔ ہو سکتا ہے رات میں آپ کو مکہ سے مینا پہنچایا جائے تو آپ کو یہ نماز 6 پڑھنی ہوں گی۔ صبح کی جو فجر کی نماز ہے 8 تاریخ والی یہ نہیں گنی جائے گی، ظہر سے گنی جائے گی۔ اب 5 نماز آپ کو مینا میں پڑھنی ہے اور یہ 5 نماز مینا میں پڑھنا سنت ہے۔ مینا میں آج آپ کا عمل کیا ہے؟ آج آپ کو مینا میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، درود تلبیہ پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، استغفار پڑھنا ہے اور کل 9 ذی الحجہ کے لیے حج کی تیاری کرنا ہے۔ 9 تاریخ کی رات آپ مینا آئے۔ مینا میں 9 تاریخ ہوئی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو 8 تاریخ کا دن ہے اور 9 تاریخ کی رات ہے، رات میں ہی آپ کو عرفات پہنچا دیا جائے۔ یہ پھر ایک معاملہ وہی آیا کہ ایک انتظامی مسئلہ ہے۔ اگر رات میں آپ کو پہنچایا جائے تو اس کے لیے مخالفت نہ کریں، رات میں چلے جائیں۔ اور اگر آپ کا جانا صبح طے ہو تو پھر صبح فجر پڑھ کر آپ کو تکبیر تشریق شروع کرنی ہے۔ تو یہ 23 نمازوں میں تکبیر تشریق پڑھی جائے گی، 9 ذی الحجہ سے لے کر اور 13 تاریخ کی عصر تک۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک بار پڑھنی ہے تکبیر تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ 9 تاریخ سے تکبیر تشریق پڑھی جائے گی۔ پھر 9 تاریخ کو آپ کو عرفات جانا ہے۔ عرفات کے میدان میں آپ کو زوال سے پہلے پہنچنا ہے۔ پہنچانا معلم کا کام ہے۔ آپ کو بس کے ذریعے سے، ٹرین کے ذریعے سے، ٹرین کا ٹکٹ ملا ہے تو آپ کو ٹرین کے ذریعے پہنچایا جائے گا۔ زوال سے پہلے آپ عرفات پہنچیں گے اور عرفات میں صبح ہی پہنچ جائیں، ہو سکتا ہے زوال سے پہلے آپ کو عرفات کے لیے خود کو تیار کرنا ہے، وقوف عرفہ کے لیے۔ وہ کس طرح؟ اپنی ضرورت سے، اپنے سونے سے فارغ ہوں، پھر ضرورت سے فارغ ہوں، استنجا وغیرہ سے، اگر ہو سکے تو غسل کرنا ہے۔ عرفات میں غسل کرنا یہ سنت ہے، غسل کر لیں اور اس کے بعد زوال سے پہلے آپ باوضو ہو کر ایک دم تیار رہیں۔ جیسے ہی زوال ہوگا بس آپ حاجی ہو گئے۔ عرفات میں آپ تلبیہ، تکبیر، تسبیح، تحلیل اور درود شریف یہ کثرت سے پڑھیں گے۔ اور اگر ہو سکے تو 9 تاریخ کی جو دن ہے زوال کے بعد، یہ آپ عرفات میں کھڑے ہو کر گزاریں، جتنا بھی ہو سکے۔ وقوف کھڑے ہو کر کریں یا اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے مانگیں۔ لمبی دعائیں کتابوں میں دیکھ کر نہ مانگیں، بلکہ اپنی زبان میں جو بھی آپ کو آتا ہے اپنی زبان میں مانگیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ وہ دعائیں جو عربی میں آپ پڑھیں لمبی کتابوں میں اور آپ اس کو سمجھیں نا، ان سے بہتر ہے آپ چھوٹی دعائیں اپنی زبان میں یا پھر اپنی زبان میں اللہ سے مانگیں۔ اللہ سے جو بھی آپ کو مانگنا ہے، یہ مانگنے کا خاص دن ہے۔ وقوف عرفہ، عرفات کا میدان، اس دن اللہ تعالیٰ عام مغفرت کا اعلان کرتے ہیں۔ جتنی بھی اللہ کی خوشامد کرنی ہو، جتنا بھی اللہ کے سامنے گر گرانا ہو، آج کا دن ہے اللہ سے مانگنے کا۔ سورج غروب ہوا 9 ذی الحجہ، جیسے ہی سورج غروب ہو، تلبیہ پڑھتے ہوئے، تکبیر پڑھتے ہوئے، تحلیل لا الہ الا اللہ، درود شریف، استغفار پڑھتے ہوئے اب آپ کو مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا ہے۔
मगरिब की नमाज ना अरफात में पढ़नी है, ना मुजदलिफा के रास्ते में पढ़नी है। ना मगरिब की नमाज अरफात और मुजदलिफा के बीच में रास्ते में पढ़ेंगे और ना अरफात में पढ़ेंगे, बल्कि मगरिब की नमाज आज अल्लाह का हुक्म है अरफात से निकलकर मुजदलिफा पढ़ी जाएगी। और मुजदलिफा में अगर आप इशा से पहले पहुंचते हैं तब भी मगरिब की नमाज नहीं पढ़नी है। आज मगरिब की नमाज इशा के वक्त में होगी और अदा होगी इस तरीके पर कि मुजदलिफा पहुंचकर पहले आप मगरिब पढ़ेंगे, बीच में सुन्नत नफिल नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ तकबीर तशरीक और तलबिया पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इशा की नमाज पढ़ेंगे, फिर तलबिया, फिर तकबीर तशरीक और तलबिया पढ़कर अब मगरिब की सुन्नत नफिल पढ़ेंगे, फिर इशा की सुन्नत नफिल पढ़ेंगे। और अगर रास्ते में देर हो जाती है, 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, 1 बज जाता है, 2 बज जाता है, फिर भी आप मगरिब की नमाज अरफात या रास्ते में नहीं पढ़ेंगे बल्कि मुजदलिफा में आकर पढ़ेंगे। हाँ, कोई किसी को ऐसा वक्त हुआ, जाम लग गया या ऐसा मामला पेश आ जाए कि वो मुजदलिफा में अब नहीं पहुंच सकता, सुबह सादिक होने वाली है, बस इतना वक्त बचा है कि कहीं भी नमाज पढ़ ले मगरिब की, तो अब नमाज हो जाएगी। और अगर किसी ने मगरिब की नमाज रास्ते में पढ़ी और नमाज मुजदलिफा में आके सुबह सादिक से पहले पहले पहुंच गया तो उसको दोबारा पढ़नी होगी। मुजदलिफा आएंगे, आज की रात आपका वकूफ़ मुजदलिफा में होगा, मुजदलिफा में आपका वकूफ़ होगा। यहाँ पर आपको रात को वकूफ़ करना है, अल्लाह का जिक्र करना है। मगरिब और इशा की नमाज पढ़ें, कुछ देर अल्लाह का जिक्र करें और तकरीबन 70 कंकरियाँ यहीं से चुन लें। अगर हो सके तो पूरी रात इबादत में गुजारें। बाज़ उलमा ने इस रात को कहा है कि ये शब कद्र से भी अफजल है, और अगर सोना चाहते हैं तो सो जाएं, लेकिन अलग सुबह उठें। मुजदलिफा में इबादत सुबह सादिक से लेकर, जो वकूफ़ का वक्त है मुजदलिफा में, वो है सुबह सादिक से लेकर और सूरज निकलने से चंद लम्हे पहले। जैसे ही सूरज तुलू होने वाला हो, अब मुजदलिफा से आप मिना के लिए चलेंगे। 10 तारीख का दिन निकल आया, ऐसे ही तलबिया पढ़ते हुए, तकबीर पढ़ते हुए, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए, दरूद शरीफ पढ़ते हुए, इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए 10 तारीख के दिन आप मिना में आ गए। 10 तारीख की रात आप मुजदलिफा में थे और 10 तारीख के दिन आप मिना में आए। मिना में आने के बाद सबसे पहला जो काम आपको करना है वो करना है बड़े शैतान को कंकरी मारना। लेकिन आप जो अपने साथ सामान लेकर गए थे, थोड़ा सा मुख्तसर सा सामान, सिर्फ एक पिट्ठू बैग, उसमें अपनी ज़रूरत का सामान, वो आप पहले अपने आप खीमों में जाके रखेंगे। आमतौर से मुजदलिफा से सीधे हाजी कंकरी मारने के लिए जब रात जाते हैं, तो अगर उनका सामान थोड़ा सा भी भारी होता है तो वो सामान रास्ते में उनका रख देते हैं, फेंक देते हैं, पुलिस वाले रख लेते हैं, आगे जाने नहीं देते। और सामान लेके जाने में भीड़ वाले इलाके में परेशानी होगी, तो आप सीधे अपने खीमों में आएँ। खीमों में आने के बाद आप सामान रखें, कुछ देर क़याम करें, आराम करें, जब थकन दूर हो जाए तब चलें। एक आपको ये देखें कि आपकी कुर्बानी का जो टाइम है उसका ख्याल रखें, क्या टाइम दिया गया है। अगर आपकी कुर्बानी का टाइम शाम का है तो फिर आप आराम से कंकरी दोपहर बाद या दोपहर से पहले या दोपहर बाद मारने जाएं। और अगर कल का है किसी की कुर्बानी का टाइम, तो वो आराम से रात में मारे, खास तौर से ज़ईफ़, बूढ़े, बीमार और औरतें, ये कंकरी रात में मारे। और अगर आपका टाइम है दोपहर से पहले का, तो फिर जो भी कुर्बानी का टाइम है उससे पहले पहले आप जमरात जाके कंकरी मारें। सूरज निकलने से के बाद में आप मुजदलिफा से मिना के लिए आए। मिना में आने के बाद अब आपको 3 काम करने हैं। पहले करनी है आपको छोटे बड़े शैतान को कंकरी मारना, डमी करनी है बड़े शैतान की। दूसरे नंबर पर करना है आपको कुर्बानी, और तीसरे नंबर पर करना है आपको हल्क। आज मिना में 3 काम, पहले नंबर पे रमी, फिर दूसरी कुर्बानी और फिर हल्क। रमी करने के बाद में कुर्बानी होगी, इसका ध्यान रखें। पहले कंकरी मारी जाएगी, फिर कुर्बानी होगी और फिर हल्क, सर के बाल कटेंगे। ये तरतीब हनफी मसलक में वाजिब है। अगर इसके खिलाफ होता है तो फिर एक दम देना होगा, इसका ख्याल रखें। अब रमी, कुर्बानी और हल्क के बाद आप सिले हुए कपड़े पहनेंगे, एहराम उतार देंगे। एहराम उतारने के बाद अब आपको मक्का जाना है तवाफ़ ज़ियारत करने के लिए। लेकिन तवाफ़ ज़ियारत के लिए आप इसके बीच में भी कर सकते हैं, रमी और कुर्बानी के बीच में भी तवाफ़ ज़ियारत कर सकते हैं, हल्क और कुर्बानी के बीच में भी कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं। तवाफ़ ज़ियारत का टाइम है 10 ज़िलहिज्जा से लेकर 10 ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक से, और सुन्नत है तुलुए आफ्ताब से, और 12 ज़िलहिज्जा के गुरूब तक। आपकी जैसे सहूलत हो, जैसे आपका प्लान प्रोग्राम हो, जैसे आप चाहें, तीनों दिनों में कभी भी कर सकते हैं। सुन्नत है पहले रमी, कुर्बानी और हल्क के बाद, सुन्नत यह है कि हल्क के बाद सर के बाल काटने के बाद एहराम खोलकर आम कपड़ों में तवाफ़ ज़ियारत किया जाए। लेकिन अगर आपने आगे पीछे भी कर लिया तब भी कोई हर्ज नहीं। तवाफ़ के बाद आप मक्का मुकर्रमा आए। मक्का मुकर्रमा
तवाफ़ के लिए, तवाफ़ ज़ियारत के लिए अगर जाते हैं आप आज 10 तारीख में, तो तवाफ़ ज़ियारत से फारिग होकर आपको वापस मिना आना है। आज 11 तारीख की रात फिर आप मिना में। ये रातें मक्के में अगर किसी को रात हो जाती है तवाफ़ ज़ियारत करते हुए तो कोई हर्ज नहीं है, पूरी रात गुजर जाए तब भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बगैर ज़रूरत के, बगैर उस काम के आपको मक्के में रहना ये खिलाफ सुन्नत है। रात में वापस आपको मिना आना है, 11 तारीख की रात फिर मिना में। अब जब 11 तारीख का दिन होगा तो 11 तारीख का दिन को ज़वाल के बाद, आज वक्त होगा कंकरी मारने का शैतान को ज़वाल के बाद। ज़वाल के बाद आपको तीनों शैतानों की रमी करनी है, कंकरी मारनी है। किस तरह कि पहले छोटे शैतान को कंकरी मारी जाएगी, उसके बाद थोड़ी देर दूर चल के जो भीड़ से आप अलग हटें, कुछ देर दुआ की जाएगी काबे की तरफ मुँह करके। फिर आप दरमियानी शैतान को कंकरी मारेंगे, फिर कुछ दूर हट के दुआ करेंगे। उसके बाद आप बड़े शैतान को कंकरी मारेंगे। कंकरी मार के ना दुआ करेंगे ना ठहरेंगे। अगर आपका इरादा है अब मक्का जाने का तवाफ़ ज़ियारत के लिए, तो यहीं से सीधे तवाफ़ ज़ियारत के लिए मक्का चले जाएं। और अगर आपका इरादा है वापस मिना आने का, तो अपने कारट पर अपना नंबर देख के, रोड नंबर देख के वापस आप मिना में आ जाएं। 12 तारीख की रात आप फिर मिना के अंदर हैं। 12 तारीख की रात आप फिर मिना के अंदर हैं और मिना में आपका काम है अल्लाह का जिक्र, अल्लाह को याद करना, दुआ करना, इस्तग़फ़ार करना। तलबिया जो आप पढ़ रहे थे वो 10 तारीख को जैसे शैतान को कंकरी मारने के लिए आए थे, तो दुआ पढ़ेंगे, पहले तलबिया बंद करेंगे, फिर कंकरी की दुआ करेंगे। 12 तारीख की रात आप आए, 12 तारीख की रात आपकी है मिना में। उसके बाद 12 तारीख का जो दिन निकलेगा, इस दिन में आपको फिर सुबह सादिक में कंकरी नहीं मार, सुबह के वक्त कंकरी नहीं मारनी है, बल्कि ज़वाल के बाद, ज़वाल होने के बाद कंकरी मारने का वक्त शुरू होगा। आमतौर से लोग खास तौर से 12 तारीख में ज़वाल से पहले कंकरी मार के और मक्का आ जाते हैं अपनी रियाजगाह पर। किसी ने अगर ज़वाल से पहले कंकरी मारी तो गोया वो ऐसे माना जाएगा जैसे उसने कंकरी मारी ही नहीं है, या तो वो वापस जाके कंकरी मारे, नहीं तो एक दम देगा। 12 तारीख में ज़वाल के बाद फिर तीनों शैतान को कंकरी मारनी है। किस तरीके पर? पहले छोटे शैतान को कंकरी मारनी है, कुछ पीछे हटकर, यानी भीड़ से पीछे हटकर कुछ देर दुआ करनी है, फिर दरमियाने शैतान को कंकरी मारनी है, फिर पीछे हटकर किबला रू होकर फिर कुछ देर दुआ करनी है, फिर बड़े शैतान को कंकरी मारनी है। ना दुआ करनी है ना ठहरना है। बड़े शैतान को कंकरी मारने के बाद ना तो दुआ की जाएगी ना ठहरा जाएगा। अब अगर वापस आप मिना आना चाहते हैं तो वापस आ जाइए अपना रोड नंबर देख के, और अगर आप हरम जाना, मक्का जाना चाहते हैं तवाफ़ ज़ियारत के लिए, तो आप सीधे मक्का चले जाइए। 12 तारीख को सूरज निकलने से पहले पहले आपको मिना छोड़ना है। सूरज छिपने से पहले पहले आपको मिना छोड़ना है। लेकिन अगर आपने हालात बना लिए, अपने आप को तैयार कर लिया, सामान समेट लिया, अब सूरज छिप भी गया, रात भी हो गई, तब भी जा सकते हैं। लेकिन अगर सुबह सादिक मिना में हो जाए, या रात हो जाए, या सुबह सादिक हो जाए, तो अब मिना में रहना वाजिब है। 13 तारीख को फिर आप मिना में क़याम करेंगे रात में। 13 तारीख में जब दिन निकलेगा, तो 13 तारीख के दिन निकलने के बाद आपको ज़वाल के बाद फिर तीनों शैतानों को कंकरी मारनी है। अब 13 तारीख में आप कंकरी मार के सीधा मक्का आ जाएंगे। 12 तारीख में जाते हैं मक्का, तो 12 तारीख में भी कंकरी मार के आ सकते हैं। आप 12 तारीख से भी आ सकते हैं, 12 तारीख में भी, और 13 में भी आ सकते हैं। आपका हज मुकम्मल हुआ। अल्लाह आपके हज को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला आपको हज मबरूर नसीब फरमाए। थोड़ा सा बहुत आसान मुख्तसर दिया गया है, नक्शे के ज़रिए से समझाया गया है। अगर इस पर ध्यान देंगे तो इंशाअल्लाह बहुत आसानी से, बहुत कम वक्त में समझ में आ जाएगा। रोज़ाना का अमल अलग अलग,